Again, I'm not quite sure if it's readable, but doesn't matter. Just table of content. We will do a web call after Holi. So this is another topic जहाँ पर I think understanding and appreciation is very intuitive and conceptual जो एक thinking होती है around risk or a structured thinking around risk usually does not exist in many small and medium sized companies. In fact, big companies also make big blunders when it comes to risk. And I'm not talking about only risks which are, you know, IT security और ये वाली चीज़ें और बड़े बड़े टॉपिक्स की बात नहीं कर रहे हूँ. Very focused on things that you need to be a bit more conscious about, you know, and start introducing it in your conversations within the company. तो कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब ये है कि आप अपनी डे टू डे बातों में इन्हें लेके आएं. ये सवाल पूछना शुरू करें. हम ज़्यादातर क्या करते हैं, सिर्फ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं. वी हार्डली एवर डू एन असेसमेंट ऑफ द रिस्क. सो दिस टॉपिक इज अबाउट दैट एंड आई कैन टेल यू दैट जिन कंपनीज में रिस्क एक बहुत वेल थॉट आउट फंक्शन है, they end up performing a lot better than companies where risk is not calculated, evaluated, discussed. तो सिर्फ एक one sided view है. Risk is a very nice thing actually. हमें डर लगता है इस शब्द से. हम इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं. क्या है यार, ये हमें पीछे खींच रहा है. रिस्क की बातें कर रहे हैं लोग. नेगेटिव हैं ये लोग. Right. But it plays the balancing act. If you discuss risk, it can modify your action plan. माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है. हाँ, वो बड़ा impressive लगता है इस टाइप की. रिस्क है तो इसमें अगर लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो रिस्क तो लेना ही है. By discussing risk, we are not saying that we will not take risk. This is very important. We are just saying that we know what the risk is. See, in business, you need to be aware of risk. It's not about कि हमें रिस्क लेना नहीं है. This topic is not so much about that. But it doesn't mean that कि अगर रिस्क लेना है तो हमें पता ही नहीं कि रिस्क है क्या. So this is about risk लेना है और being aware of the risks which exist And then you take the risk. Right? So where is the distinction here? Many of us are just taking risks. रिस्क के बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते. रिस्क का मतलब क्या है कि कुछ अनसर्टेन चीज है आगे जाके. What is at stake? And you're taking an action. Be aware of the consequences. Also, What is at stake? right? what to लोग कहते हैं calculated risk, वो कुछ होता है हाँ वही ना. It's just awareness of risk. सेम. Calculate आप तभी करोगे ना अगर आप aware हो. Basically, it means you've figured out the downside of your choices. So you have to be risk aware. You don't have to be risk averse. Right? So many people think that if you're risk aware, you're risk averse. So that is the wrong logic, right? So what you need to become is risk aware. Are you aware of the risks to your business? That is important. Are you averse to taking risks? That is scary. Because then you can't run and build a business. Taking risk is the basic essential concept behind entrepreneurship. It's an uncertain world. You're making choices every single day about the future. Right? But if you're risk aware and you're making those choices, तो होगा क्या, आप अपने tactical strategic plans को adapt कर पाते हो. Right? So for example, if you कोविड का सिचुएशन लेते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे आपको ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है. राइट? तो अ रिस्क अवर्स पर्सन विल से, एंड आई मेट मेनी सच पीपल, कोई फर्क नहीं पड़ता है.
कि मास्क वास्क सबको होना है, कोई ज़रूरत नहीं है। डू योर वर्क, काम करना सब कुछ है। तो लोगों ने ये किया, एंड दे हैड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज 90% ऑफ द टाइम, वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन देयर फैमिलीज। बट इफ यू रिस्क अवेयर, काम करना है, बहुत ज़रूरी है काम करना, तो यू टेक अल्ट्रा प्रोटेक्शन, 2 मास्क 3 मास्क, ये वाला मास्क वो वाला, बार बार हाथ धो रहे हो। सो यू आर एक्टिंग एज अ रिस्क अवेयर, रिस्क इंटेलिजेंट पर्सन, yet you're doing your work. So you've dramatically reduced the probability of infecting yourself and your family members, and then as a result, Correct. many other benefits. Right. So you're talking about becoming risk aware, not risk averse. But sometimes when the risk is extremely high, then you actually choose not to take action also. It's okay. If the threat is so high. So one of the reasons why the West is not able to take action is because the threat of Russia is so high. तो पता है कि पुतिन पागल आदमी है न्यूक्लियर तो धमकी दे कि रही है। वॉर हो जाएगी अगर हमने एक्शन ले लिया। Third World War हो जाएगी। राइट, तो वो रिस्क को असेस कर रहे हैं, दे आर रिस्क अवेयर। वो यूक्रेन वाला बार बार वो गोली दे रहा है कि करो करो करो, नहीं हम नहीं कर रहे। ये पागल आदमी है, इसने तो मरना ही है, हमें भी साथ ले डूबेगा। राइट। So does it sometimes make sense to be that पागल आदमी? हाँ, Does इट डिपेंड्स राइट, Depends upon what you have, अपने- और क्या कि किस साइड पे हो आप। सर रिस्क कितनी अवर्स power तो वो नहीं था जो नहीं, अगर उसने डिसाइड ही कर लिया मैंने मरना ही है। रिस्क अवर्स इज अ गाय हु डजंट टेक रिस्क एट ऑल, बस पावर है ना उसकी जेब में। और वो paralyze हो जाता है। चाइना को साथ लेगा अभी। बट रिस्क अवेयर इज अ पर्सन हु इवैल्यूएट्स द रिस्क, And then क्वांटिफाइज द decides. रिस्क एंड देन टेक्स अ डिसीजन। I think I'll get you fresh glass. So, strategic risk management is the process of identifying. पहले तो आइडेंटिफाई करो कि रिस्क है क्या, फिर क्वांटिफाई करो। हम क्वांटिफाई कह रहे थे ना, कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेट तो वही होता है ना जो क्वांटिफाई हो पाए। पहले आइडेंटिफाई करो, फिर क्वांटिफाई करो, और जब क्वांटिफाई हो जाए तो उसको मिटिगेट करो। टेक मिटिगेटिंग एक्शंस कि मैं रिस्क को रिड्यूस कैसे करूँ। लेट्स से बाय वेयरिंग अ मास्क, N95 बेटर क्वालिटी मास्क, बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज करना, दोज आर वेज ऑफ मिटिगेटिंग। राइट, एनी रिस्क दैट अफेक्ट्स और इज इनहेरेंट इन अ कंपनीज बिजनेस स्ट्रेटजी। रिस्क कहाँ पर है? रिस्क कहाँ पर बैठा हुआ है? वेयर डज रिस्क सिट? What you plan to do? इन द फ्यूचर। Decisions. प्रेजेंट में तो कोई खास रिस्क है नहीं, पास्ट वाले रिस्क सारे खत्म हो चुके हैं, फ्यूचर में ही रिस्क है। Future. राइट, तो अगर स्ट्रेटजी है तो रिस्क है, बिकॉज स्ट्रेटजी फ्यूचर के बेसिस पे बनी है कि आगे जाके हम कुछ करेंगे। तो आपने बोला कि आई वांट टू बी अ मार्केट लीडर इन सो एंड सो प्रोडक्ट इन नॉर्थ अमेरिका, स्ट्रेटजी है, विजन है। विजन से आपने स्ट्रेटजी बनाई कि कॉस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हमारे सबसे ज़्यादा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है इसका। देन द क्वेश्चन यू कैन आस्क इज, बिकॉज ये फ्यूचर है, दैट मीन्स देयर इज सम रिस्क, then you must ask yourself this particular question with your team. What are the risks to this strategy? Where can we go wrong in anticipating what can also happen? What if the technology changes to make those products and you're not investing in that kind of technology? Right. You could be completely outdated. तो जो आप सोच रहे हो सपना वो तो छोड़ो, जो हाथ में है वो भी जाएगा। ऐसा कितनी कंपनीज के साथ हुआ है? Right. Right. सभी के साथ होता है। सो व्हाई डिड नोकिया वेंट बैंकक्रप्ट? नॉट बिकॉज दे वर अ बैड कंपनी, नॉट बिकॉज उनके पास अच्छे लीडर्स नहीं थे। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो या ओवर कंजर्वेटिव हो अभी जाते आप हो। उसको ही देख लीजिए, भारत पे ही वाज अ सुपरस्टार फ्यू डेज बैक, टुडे ही इज आउट ऑफ दैट कंपनी। राइट, It's a very short- सो ही नेवर short असेस द story. रिस्क ऑफ हिज एक्शंस, ऑफ हिज स्टुपिडिटीज रादर। हम्म, Correct. सोचो उदय कोटक जैसे बंदे को चैलेंज कर रहे हैं, जिसको लोग रतन टाटा के बाद मानते हैं। हम्म, Correct. Stupidity, no, it's nothing else. Never evaluated, he was not risk aware. So 3 टाइप के लोग होते हैं, रिस्क एडवर्स, जो फ्रीज हो जाते हैं, पैरालाइज, कुछ करते ही नहीं है लाइफ में, हम्म, डजंट वर्क, ठीक है, हालत खराब होती है उनकी। रिस्क अवेयर, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं,
कि आइडेंटिफाई करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, रिस्क को फिर मिटिगेट करते हैं। दोज आर द इंटेलिजेंट पीपल दैट यू वांट टू बिकम। एंड एक थर्ड टाइप होता है जो रिस्क फुलिश, अवेयर होने के बावजूद स्टूपिडिटी करते हैं। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ये मुझे इससे मुझे कुछ नहीं होगा। सानू की हमें कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं So होगा। not मुझे कुछ नहीं रिस्क होगा। फुलिश। रिस्क फुलिश, इस टाइप के लोग अवेयर होके भी, Stupidity. अवेयर होके भी। सो दिस गाय अशनीर इज बेसिकली रिस्क फुलिश टेक्निकली, बट ही स्टिल डजंट रियलाइज बिकॉज ईगो इतनी स्काई हाई है, राइट? ईगो मेक्स यू फुलिश, राइट? Actually. कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने आज तक जिस चीज को छुआ है वो सोना बन जाता है। Nobody can touch me, even Ravan thought so, right? So that's risk foolish. कि सीधा जाके सीधा कोई ले आए, मतलब come on, be सही prudent, बात है। right? सुखबीर उगीर के लाता तो ठीक था। I mean, lower your expectations. रावण को बोला सुग्रीव- राम का नाम लो। उसके यूपी क्यों गया तू? कर्नाटका कर्नाटका चल। ठीक है जी? तीन टाइप के लोग होते हैं, रिस्क एडवर्स, रिस्क अवेयर एंड रिस्क फुलिश। चंडीगढ़ जाके बदल गए भाई। चंडीगढ़ वाली बातें हो रही है। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन क्लियर है तीनों में? Yeah. So why do leaders, transformational Risk leaders, foolish. embrace risks? देखो क्या होता है, टाइम्स ऑफ डिसरप्शन रिस्क टेकिंग अनअवॉइडेबल है, कुछ तो रिस्क लोगे आप। यू ऑल्सो नो दैट बहुत सारी इनोवेशंस पे आप काम कर रहे हो, उसमें कुछ फेल होंगी, कुछ सक्सेसफुल होंगी, राइट? सो रेदर देन ट्राइंग टू अवॉइड दीज रिस्क्स, जो रिस्क अवर्स वाला काम होता है, जो इंटेलिजेंट लीडर्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं और रिस्क को मैनेज करते हैं, दे प्रिपेयर। So for example, if Shami decides I want to launch Indimix in the market, it's an innovation. There's a big opportunity ahead, but there's also a decent risk that it can fail. So then one can ask some tough questions. Why will it fail? क्या इसकी positioning ठीक है? क्या हमारी strategies ठीक हैं जो marketing strategy बनाई? क्या उसको हम challenge कर सकते हैं? Right. क्या product में और improvements हो सकती है? What if product doesn't get accepted? Have I taken enough feedback? क्या मैं assume ये तो नहीं कर रहा कि मैंने किचन में टेस्ट किए हैं, मेरे 10-15 लोगों ने खा के देखा है और वो कह रहे हैं अच्छा है, वो इसलिए कह रहे हैं अच्छा है बिकॉज शम्मी ने पूछा है, राइट। अच्छा है, हाँ अच्छा है, राइट? दैट्स अ वेरी हाई रिस्क। इंक्रीमेंट हो गया सबका। तो देन वी, आई टोल्ड शम्मी कि यार आप ये प्लीज वर्क विद दिस कंपनी, ये सेंसरी टेस्टिंग कराती है, बहुत प्रॉपर तरीके से करवाओ। अगर प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ तो ब्रांडिंग हम कितनी भी अच्छी कर लें वो फेल ही होने वाली है। Correct. प्रोडक्ट हैज टू बी गुड। So he's a smart guy. He said, चलो एक्सप्लोर करते हैं उसको। अब कल वर्कशॉप है इनके ऑफिस में सेंसरी टेस्टिंग की, तो अभी अपनी टीम को एजुकेट कर रहे हैं कि सेंसरी टेस्टिंग होती क्या है। उसके बाद उन्हें अगर ये रिस्क समझ आ गया, अगर समझ आ गया तो फिर आगे काम करेंगे, नहीं तो कहेंगे नहीं जी हमारे लोग ही ठीक बताते थे। So that can be risk blind or risk foolish, right? And sometimes many leaders do not want to spend money on a process which can mitigate the risk. It's risk mitigation ना, Because प्रॉपर of- तरीके से साइंटिफिक तरीके से टेस्टिंग कराना। तो उसका एक रीजन ये भी नहीं, हम इनहेरेंट बोलते थे तो सक्सेस हो गई। अभी तक तो जो भी छू रहे हैं सोना बन रहा है ना। हाँ, तो फिर क्यों हाँ। होगा? नहीं होगा तो पैसा है, चलाते रहेंगे। चाहे किसी चीज़ Am I में- right? चाहे किसी चीज़ में इंश्योरेंस स्किप कर दो। हाँ, सोचे लाइक कि इंश्योरेंस नहीं, स्किप कर दो। हाँ, इट्स लाइक स्किपिंग द इंश्योरेंस। shortest- Mitigation, right? हाँ, So नहीं, ठीक है, sometimes you have to allocate a budget for this. It might seem expensive at first, Beautiful. बहुत सही क्या बात। बात है, इंश्योरेंस है ये। right? तो मिटिगेशन के लिए खर्चा करना पड़ता है। अब तो हमें लगता है यार किस चीज़ का खर्चा कर रहे हैं हम। अब तो तीन लोगों का काम कर रहे हैं, डायरेक्टली छोड़ के देयर टू अदर पीपल हाँ, उनके right. सेम काम कर रहे हैं। हाँ, राइट। बट रिस्क वो भी नहीं होना, एडवर्स की एक्शन ही नहीं ले पा रहे। शमी दी हुई यार, ये परफेक्शनिस्ट में भी ना sensory वाला। समझ कि आप Tactics नहीं, ये risk वाला, ये Tactics- sensory वाला। Tactics- टेक टेस्ट। Okay.
अच्छा तो द डे आई मेट द फाउंडर ऑफ टेक टेस्ट, मुझे समझ आया ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो आई कनेक्टेड हिम टू ऑल माय फूड एफएमसीजी क्लाइंट्स. So they work only for the Indian market or global? Global. Sir, please. I'll connect you. Right? इतना बढ़िया काम कर रहे हैं वो कि पूरा रिस्क ही मिटिगेट करते जा रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में. फूड जैसी चीज़ में आज की डेट में कोई बर्गर कुछ भी निकलता है, बर्गर किंग का, पिज़्ज़ा हट का, कुछ भी इनकी लैब से जब तक पार नहीं होगा वो लॉन्च नहीं होगा. वो पहले क्या करते, लॉन्च करते जाओ, यू नो सो एक्सपेंसिव, हिट एंड ट्रायल. बट ये तो स्टैंडर्ड्स ग्लोबली कंपनीज करती है ना. But- व्हाट इज न्यू इन दिस? छोटे छोटे लेवल पे, छोटे level पे अनस्ट्रक्चर्ड होता है तरीके से. हम भी क्या करते हैं ना, हम अपने ये सैंपल लोग भेजते हैं तो तो कंज्यूमर company तक में बहुत ज़्यादा market जाता से नहीं होगा है. ना. हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है, वो आगे थोड़े बहुत बांटते हैं, They have a specialist panel. रिटेलर को दिखाते हैं, Proper एक्सेप्ट scientific होता है. अच्छा पर है. कंज्यूमर के Wine लेवल पे tasting पहले है. काम कर लो ये वाला इन कंपनीज के साथ, वो फ्रेग्रेंस बेटर पे भी है. वो ज़्यादा बेटर है. ये बेटर है उसमें ना एनी वो टाइम. fragrance में सिर्फ होता ही मनी है. एलोकेट करना होता है, उसके लिए वो साइकोलॉजिकल बैरियर है कि यार अपफ्रंट खर्चा ये लगेगा. प्रोसेस भी तो बचाएगा. जो बहुत पैसा बचाता है ये. डू इट साइंटिफिकली. But that is being हाँ, risk पूरा aware, improve quality. risk intelligent. कि spending a few lakhs right now rather than spending crores later only to हर एक retract. चीज में हो सकता है, प्रोडक्ट में yes. भी हो सकता है, पैकेजिंग में भी हो सकता है. सर ये जो काम है ना, नहीं, ये हर मुझे चीज़ में हो लगता है सकता है. टाइम भी सेव करेगा बहुत ज्यादा. बहुत वही crores सर, opportunity cost. ये चीज जैसे आप प्रोडक्ट में कर रहे हो तो पैकेजिंग में भी हो सकती है. हर चीज़. So if you're Packaging launching में a भी होता है. packaging, Of course. उसका जनरल क्या होगा? Look There can and be feel methods कैसा है. to There can be mitigate the methods risks. scientific, mitigate और packaging risk, get it analyzed. Market research का purpose ही यही रहा है ना हमेशा से. Why was market research? Why did it become a discipline? One more new idea. कि पूछ तो नहीं कस्टमर चाहता क्या है. भाई घर बैठ के हम बनाते जा रहे हैं assuming कि वो उसको पसंद आ जाएगी चीज़. Right. So limiting risks by applying change to, so कैसे वो mitigate करते हैं. एक तो जब भी आप कुछ change कर रहे हो, कुछ नई चीज़ कर रहे हो, तो you are adding risk to your business. Right? क्योंकि आप capital allocate कर रहे हो न्यू डायरेक्शन में, जो कि highly unpredictable है. तो रिस्क ऐड हो रहा है. जब भी आप कुछ नया काम करते हो, risk, कुछ लोग होते हैं हम कुछ नया करेंगे, छूट गया. तब भी रिस्क ऐड हो रहा है. Then the risk is a bigger risk. You may end up becoming non-existent if you don't do anything new. Right? Because risk तो फ्यूचर में है ना. कुछ नहीं करोगे तो भी रिस्क है, कुछ करोगे तो भी रिस्क है. तो बेटर है कि रिस्क मैनेज कर लें, क्वांटिफाई करके मिटिगेट कर लें. तो ये क्या करते हैं जो स्मार्ट लीडर्स होते हैं, जब भी वो कुछ नई चीज़ करते हैं तो उसे लिमिटेड एरिया में पहले अप्लाई करके देखते हैं. बीटा टेस्ट. One of course is market research and these kind. Second is let's test out. MVP हो गया. MVP हो गया, बीटा टेस्ट हो गया, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स रन किए, कंट्रोल्ड ट्रायल्स. जैसे वैक्सीनेशन भी जब चालू हुई तो इट कैरिड अ ह्यूज रिस्क. जैसे अभी जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसका अब रिजल्ट आ रहा है, लोगों को ब्लड कैंसर हो रहा है चाइनीज़ वैक्सीन से. कैन यू बिलीव इट? इट्स देयर. कोरिलेट हो गया. हाँ, कोरिलेट हो गया. कोरिलेट हो गया कि द न्यू केसेस जो ब्लड कैंसर के आए वो साइनोवैक लिया था उन्होंने. वो जो सबको लगी होगी चाइना में. चाइना में लगी है, अफ्रीका में बहुत लोगों को लगी है, एक्सपोर्ट हुई यूएई है, में भी बहुत. यूएई में बहुत लोगों को Can लगी there है. be a strategy to reduce pollution to population? No, that's not the point. The point is कि maybe the trials were not so immaculate and did not cover all factors. That is why trials are so critical, especially if it's healthcare. रेटिना डिटैच हुआ मतलब इंडिया में बहुत लोगों का विद कोविशील्ड. क्या हुआ? रेटिना डिटैच. हाँ, yeah, those kind of Happened, things yeah. have happened. So, but unpredictability. Covishield. विद कोविशील्ड. In spite of that, vaccine was necessary. Yeah. So you still had to take action कि लगाना तो पड़ेगा. The risk क्या है? Then establish monitoring and evaluation methods that allows to detect failure early and change course action in a timely way. ये बहुत ज़रूरी है. जब भी आप कुछ नया काम करते हो अपने बिजनेस में, टाइमली एक्शन ले लो, मॉनिटरिंग करते रहो. डोंट इग्नोर इट. बस एक्शन ले लिया, अब तो बस गोली निकल चुकी है. ऐसा कभी नहीं होता बिजनेस में, गोली निकल के वापस नहीं आ सकती. राइट? डोंट बी इन एन ईगो. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिजनेस में, बिजनेस लीडर्स के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. Correct. So many organizations invest in very expensive ERP systems like SAP. खर्चा कर देते हैं, लेकिन कंपनी तैयार नहीं थी. SAP में कोई खराबी नहीं थी. कंपनी वॉज नॉट रेडी फॉर इट. राइट? और उसके ऊपर और पैसा खर्च करते जाएंगे. अब तो गोली निकल चुकी है. तो जो खर्चा हो गया उसे रोक दो वहीं पर,
If you are now a little bit more intelligent, maybe use a smaller ERP solution. Right? So timely monitor करके control कर लो उसका impact और आगे का action ले लो. Leaders establish a culture where failure is not only वही चीज, failure को accept कर लो कि हमने decide किया 2 करोड़ खर्च हो गए ERP में, accept कर लेते हैं कि हम idiot थे. वो much better है rather than keep reinvesting in the foolishness just to prove that कि हमने जो decide किया था उसको हम ठीक करके दिखाएंगे. Just to prove yourself. ईगो, राइट? वो ईगो है. कई बार लोग इसलिए ईगो आती है, आपके केस में तो नहीं आएगी, तो जो बड़ी कंपनीज हैं, लीडर को अपनी जॉब बचानी होती है. ईगो छोड़ो Right. कि अगर ये प्रूव हो गया दैट आई वाज फुलिश तो आई विल लूज माय जॉब, सो ही कीप डिफेंडिंग हिज फुलिशनेस. साथ में अपनी टीम को भी साथ लेके जाता हूँ. नहीं सर, हम मतलब मेरे केस में भी आई गॉट अ मशीन जिसमें एक स्पेसिफिक पार्ट था एंड वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ एंड दैट मशीन वाज बेस्ड ऑन दैट पार्ट कि वो मशीन आएगी, पार्ट आएगा, वो पार्ट मतलब वो नहीं हुआ. फंक्शन नहीं चला. तो अब आफ्टर 2 years आई हैव टेकन अ डिसीजन कि मैं उस पार्ट को निकाल के कुछ और उसका कुछ और करूँ. तो ये आप जल्दी भी ले सकते हैं. हाँ, अगर आपका जल्दी. स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, दिस इज रिस्क. जब अब नया काम कर रहे थे ना आप कुछ, मैं मतलब दैट वाज उस न्यू time फॉर पे. मी उस टाइम पे. हाँ, तो अगर आपको ये इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग मेथड आपने पहले एक्टिवेट कर दिया होता कि देयर इज अ रिस्क ऑफ दिस पार्ट फेलिंग, हम क्या करते हैं, ओवर ऑप्टिमिस्टिक. हमने मशीन ऑर्डर की है, नया पार्ट, अब तो बस वारे न्यारे होने वाले हैं, ठोक डाले. राइट? और लगातार करते रहेंगे 2-3 साल तक, जब तक वारे न्यारे हो नहीं जाते. वो होते ही नहीं. There's a distinction called attachment versus commitment. करेक्ट. हम अटैच पार्ट्स. So if you online every time you're doing screen something option new, दिया an intelligent leader नहीं मशीन ऑनलाइन नहीं चला. will always question कि what are the chances of it failing and why would it fail? Can we keep monitoring? हम क्या छोटे लेवल पे पहले करके देखें, फिर स्केल अप करें, फिर स्केल अप, फिर स्केल अप. तो आप स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में भी यही फिलोसफी यूज होती है. राइट? गुड इन्वेस्टर, एंड प्रशांत नोज कि जितना अर्ली स्टेज वेंचर होगा उतना हाई रिस्क ऑफ फेलियर है. उतने लोग कम पैसे कमिट करेंगे, चाहे छोटा स्टेक लें. नहीं, मैं इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगाऊंगा इसमें, बहुत हाई रिस्क है. TCS में लगाने में डर नहीं लगेगा. राइट? सो प्रिडिक्टेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. देन अगर मान लो उन्होंने 6 महीने में फाउंडर्स ने अपने गोल अचीव कर लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप मोर लगाने को तैयार है. सो जो उसने प्लान प्रपोज किया था, ऐसा नहीं फाउंडर का इंटेंट नहीं था, बट वो भी तो नया काम कर रहे हैं, जैसे आप नया पार्ट लगा रहे थे. आप भी फाउंडर ही हो, इंटेंट तो सभी का ही होता है यूनिकॉर्न बनना है. कौन है जो नहीं बनना चाहता? राइट? सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क्स? The first step in creating an effective risk management system is to understand the qualitative distinctions among the types of risks that organizations face. तो रिस्क की जो साइंस है वो कहती है 3 मेन टाइप्स हैं. We will discuss them. And risk events from any category can be fatal to a company's strategy and even to its survival. So one can go into the science with many case studies, right? जैसे अनिल अंबानी के case studies अगर आप देखें, almost all the choices he made backfired. Not because he was a foolish leader, right? But he did not have appropriate risk recognition and mitigation systems in place. Intent उसका नहीं था कि शेयर होल्डर्स के पैसे डुबाने हैं. एजाइल नहीं था वो, आई थिंक. Or he did not have this system. Yes. He did not recognize that risks are also important. Right. Because शुरू में जो उसने 2-4 काम किए वो सोना बनता जा रहा था. क्या करूँ उसमें? Hmm? Can you give an example of risk mitigation? Like any अभी तो case- बताया हमने, इनके एग्जाम्पल ही ले लिया हमने कि इनका न्यू पार्ट था, Right. उसके लिए इन्होंने नई मशीन लगा दी, ले लिया चांस. Right. राइट? अगर ये उसी स्टेज पे ही अपना मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट कर देते और रिजल्ट्स को बहुत क्लोजली वॉच करते और अपनी आंख ना बंद करते, ब्लाइंड नहीं करते अपने आप को. मे बी मान लो वो बिफोर इन्वेस्टिंग वो कहता कि मैं एक ट्रायल लॉट भेज रहा हूँ कंपनी में, मेरे को वो करके रिजल्ट चाहिए, मैं अपने यहाँ सीधे ट्रायल नहीं करूँगा इस चीज़ का. Okay. मैं बड़ा बेसिक Rather than एग्जांपल investing. देता हूँ. जितने प्रोडक्ट कंपनीज जो स्टार्टअप्स हैं, जो D2C कंपनीज हैं, तो वो
they don't set up their manufacturing facility. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, सिर्फ सेल्स पे खर्चा करते हैं, बिकॉज वो अपना रिस्क ही मिटिगेट कर रहे हैं. अगर एक फैक्ट्री लगाने में खर्चा कर देंगे और प्रोडक्ट नहीं चला तो दैट इज हाउ दे मिटिगेट द रिस्क. और अगर कोई स्टार्टअप होता है फैक्ट्री लगा रहे हैं तो एंजल इन्वेस्टर्स लगाना ही नहीं चाहते बिकॉज रिस्क इज हाई. आउटसोर्स नहीं चला प्रोडक्ट तो इतना लॉस. नहीं मैं तो ये मैं तो पागलपंती कर चुका हूँ ना, ये प्रशांत भाई बोल रहे हैं. So way back in 2008 when I started factory, I was with a new product. Never knew how to market my product. Never knew how to get the product approval. Never knew even is my product right for the market or not. और फैक्ट्री खोल के बैठ गया. हाँ ये बड़े लोग करते हैं ये. मैं एग्जांपल हूँ सर. मैं तो बहुत बड़ा पागल था, अभी भी हूँ मतलब. तो मतलब वो जो थर्ड कैटेगरी थी उस स्टेज पे अब आपको काफी एक्सपीरियंस हो गया. हाँ सर अब आ गया. अब नाउ यू नो लॉन्गर रिस्क फुलिश, नाउ यू रिस्क अवेयर. सो दो चीज़ें हैं ना, यहाँ तो इस टाइप की ट्रेनिंग अटेंड कर लो, लर्निंग का माइंडसेट क्रिएटेड रखो, या पहले फैक्ट्री में कुछ करोड़ खर्च कर लो. वो तो लर्निंग फीस ही कहलाती है. हाँ जी. अगर थोड़े टाइम बाद वो लर्निंग फीस कहलाती है. So this is so much cheaper, right, सही बोला. than setting up a factory and then learning from it. So let's look at the type of risks. कैटेगरी 1 रिस्क ये सबसे इजी वाले होते हैं, बट हम कई बार इसमें भी रिस्क फुलिश होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रिवेंटेबल रिस्क्स. ये मतलब ऐसे होते हैं कि यार मतलब होने के बाद लगता है यार क्या है यार, तो मुझे पता था. हाउ कुड आई बी सो. इंश्योरेंस करा के रखो ये सब. So risks which are arising from within the organization, that means they are controllable, right? आपके circle of control में है. So Shami knows what I'm talking about. Circle of control, circle of influence, circle of concern. बिल्कुल outside control. स्टीवन कोवी की कोई फिलॉसफी है, राइट? मतलब ये वो वाले रिस्क हैं जो आपके कंट्रोल में है, वो भी नहीं आपने देखे, right? So these are what kind of risk? Employees and managers, unauthorized, illegal, unethical, incorrect, inappropriate actions, and risks from breakdowns in routine operational processes. भी आपने रूल ही नहीं सेट किए, सिस्टम ही नहीं सेट किए, तो रिस्क आता जा रहा है. रिस्क इज ऑलवेज इन द फ्यूचर. लोग एसओपी क्यों बनाते हैं? टू रिड्यूस द रिस्क. दैट्स मिटिगेशन. लोग एसओपी पे खर्चा नहीं करते. सोचो इसकी क्या जरूरत है? It's a controllable risk because human beings have the tendency to become easygoing, right? They like to skip steps. If given an opportunity, many people will become unethical. If given an opportunity, but if you don't give them the opportunity, then they will not be unethical. कि अगर पकड़े जाने का कोई चांस ही नहीं है, तो जो अंदर से जिसका मोरल कैनवस थोड़ा कमजोर है, वो तो पंगे लेगा ही. यू कांट जस्ट पुट अ सिस्टम, स्क्रीनिंग सिस्टम एंड से कि यहाँ पर सिर्फ एथिकल लोग ही ज्वाइन कर पाएंगे. That's not a risk mitigation. That's not risk mitigation. How will you know that somebody is ethical or non-ethical? हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो रेफ चेक, जैसे हायरिंग के टाइम. इफ यू डू अ रेफ चेक दैट्स मिटिगेशन, बट यू कैन बी फूल हार्डी. बंदा बहुत पसंद आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे राइट? इसको ले लो, आपने किया नहीं मिटिगेशन. So sometimes I ask my clients कि अब लीडर हायर किया आपने, रेफ चेक हो गया? हाँ एक जगह पूछ लिया, अगर नहीं इस प्रोफाइल के साथ कम से कम 3 जगह पूछना पड़ेगा, तब जाके कहते नहीं यार डिले हो जाएंगे. बेटर कि 4-5 दिन का ही डिले आएगा ना रेफ चेक करने में, बट कर लो. एयर इंडिया CEO क्योंकि मुझे यहाँ रेड फ्लैग लग रहा है प्रोफाइल में. जो एयर इंडिया का जो इजराइल CEO टर्की वाला जो. टर्की. सो कई बार हायरिंग में, सीनियर लीडरशिप हायरिंग में पैनल बनाया जाता है ऑफ एक्सपर्ट्स हु विल इंटरव्यू अ पर्सन. वो भी रिस्क मिटिगेशन ही है, क्योंकि लीडरशिप प्रोफाइल इतनी क्रिटिकल है. अगर वो गलत होगी तो कई महीने साल पीछे हो जाते हो आप. रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, दैट्स मिटिगेशन. एंड कंट्रोलेबल है ना ये तो आपके हाथ से बाहर नहीं था. ये इट जस्ट रिक्वायर्ड यू टू टेक सम लॉजिकल अवेयर स्टेप्स. So asking this question to yourself, what is the risk of hiring a wrong leader? Could be very, very, very high.
Because leader is going to direct people, he's going to tell what needs to be done, he will set the strategic direction, he will create a plan, and if it's a wrong leader, then everything is wrong. Make sense? So is this subject important for you? Very often ignored. Yes. What have I got to do with risks? You have everything to do with risks. Because you are taking risks every day. You're predicting the future. So this risk category is best managed through active prevention. Active prevention. So you can monitor operational processes. There's also risk to your cash flow, cash plan. रिस्क है ना उसमें. तो एक्टिव मॉनिटरिंग अगर आप करोगे, जो हम सुबह बात कर रहे थे, वापस आपके ऊपर आ गई बात. अगर आप वीकली मॉनिटरिंग करोगे तो आप रिस्क को रिड्यूस करते जा रहे हो. मान लीजिए आपने सोचा आप प्रोएक्टिव एक्शन ले रहे हो. ऑफिस या फैक्ट्री में आपने सोचा ही नहीं कि मेरे को फायर फाइटिंग की ज़रूरत है. मेरे को क्यों है, मतलब मुझे आज तक कभी लगी नहीं आप. मुझे क्यों पड़ेगी ज़रूरत. राइट. मेरा काम नहीं है सर. राइट. तो प्रिवेंटेबल रिस्क. सो दिस इज ऑल प्रिवेंटेबल. आपको टाइम पे पैसे नहीं आ रहे, ये प्रिवेंटेबल है. It's a discipline issue. It's your issue. Your operational controls are weak. Do not blame the industry for it. ठीक है जी? So guiding people's behavior, कई बार लोग code of conduct बनाते हैं. वो भी इसी पर्पस से बनाते हैं. They get it signed. ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को. ये आपका code of conduct. ये controllable है. Values define करते हैं. So nothing is left to imagination. The more you code your stuff, the more you mention how you want things to be done. This is mitigation. This is managing risks. Right? So the first line of defense against preventable risk events is to provide guidelines. Guidelines, SOPs, codes of conduct. And then monitoring those systems. सिर्फ policy बना के छोड़ना नहीं है. Monitoring systems, weekly reviews, monthly reviews. How far are we? जो सोचा था वैसा हो रहा है या कुछ और हो रहा है? All this is risk management. Second category of risks are your strategic risks. So ये वो वाले रिस्क हैं जो ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूंटरीली एक्सेप्ट करती है. Because in order to move forward, जैसे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना, it's a risk you accept in a lot of excitement. You're not scared of this risk. But you want to be aware of it because इस रिस्क से रिटर्न्स आएंगे काफी हाई. बट प्रॉब्लम क्या है, इस रिस्क को आप रूल्स बेस्ड कंट्रोल नहीं कर सकते. इसमें यू कांट सेट रूल्स. राइट. सो व्हाट डू यू डू? इंस्टेड you need a risk management system to design to reduce the probability of failure. Right? So assumed risks actually materialize and to improve the company's ability to manage or contain the risk events as they occur. That means you create a risk management plan. अगर new product है, वही product trials, extensive trials, as much as is essential. Limited environment. And you also go and do trials in the state you want to launch. So Exactly. as micro as So that can be part of your risk management for your new product launch. Risk management strategy. North का taste profile अलग है, South का अलग है, East का. Correct. So generally risk foolish to decide कि कल से ये करना है और फिर परसों सुबह स्टार्ट कर दिया. वो भी पैन इंडिया कर दिया वो भी पैन इंडिया लॉन्च from day one. It's not intelligent. Let's just be aware. So, for example, एक बैंक है, क्रेडिट रिस्क अज्यूम करता है, क्रेडिट रिस्क लेता है ना वो हर बार. सो वो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम सेट करता है, वो कंपनी की पूरी प्रोफाइल को प्रॉपर ऑडिट करता है, रेटिंग करता है, उसके बाद रिस्क लेता है. सो द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस. आपको डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना है, कैन पुट अ सिस्टम इन प्लेस. सिर्फ रूल सेट करने से नहीं होगा. क्रेडिट देने से पहले रेटिंग सिस्टम क्रिएट कर दो कि इसको आप कितने दिन का क्रेडिट दीजिए. डोंट यूज स्टैंडर्ड सिस्टम्स. बैंक पे तो स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं यूज करता ना. डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट स्कोर, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऊपर नीचे होता रहता है, पेमेंट टर्म्स भी चेंज होती रहती हैं. राइट. हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जी. इन चीज़ों में एसओपी काम नहीं आते इतने. एसओपी है बट इट्स जस्ट अ गाइडिंग सिस्टम.
decision making is still to be based on the person you're taking the risk with. Because not all distributors are the same. Their capabilities are different. Their bank balances are different. Their past historical performance is also different. You can't treat everybody at par. So many companies also take on risk through their research and development efforts. So 3M जैसी company इतना बड़ा part of their revenue R&D पे लगाती है, up to 5% of a multi-billion-dollar revenue. The revenue, not profit. Not profit, Wow. revenue, 5% of the up to 5%. That runs into a couple of $1 billion every year, Yeah, of course. right? So do you think they would do it without a risk management system in place? That is their core differentiator. That's their strategy. That's the reason they create so much value for their shareholders. Right? But behind that allocation of capital, there's a very structured risk management system. For an idea to go from idea to concept, then concept to product, there are multiple checks on the way. ये थोड़ी कि सडनली एक कोई ब्रिलियंट आदमी आया, टैलेंटेड आदमी, उसने बोला मेरा आइडिया है, कल सुबह इसको प्रोडक्ट में बना के मार्केट में, तो पागल है क्या? ऐसा थोड़ी होता है. We will teach you how to go about it. We know you're brilliant, but sometimes you're just exuberant, right? So आपकी ब्रिलियंस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, but let it pass through our system. Right? Then investing those $4 or $5 billion doesn't scare you. But for a company which doesn't have a risk management system in place, वो कहे कि मैं कल सुबह से मैं 100 करोड़ लगा रहा हूँ R&D में, तो खतरा है. तो फिर जो उसके शेयर होल्डर्स हैं ना, यहाँ तो वो शोर मचाएं या पैसे बाहर निकाल लें. सो अगर आप देखोगे जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनकी रिस्क कमिटीज होती हैं, दे आर सो हॉरिबली मैनेज्ड. रिस्क ऑफिसर, ऑडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है, इट्स सो पुअर, नॉलेज ही नहीं है किसी को. राइट? सो यू ट्रस्ट द लार्ज कैप कंपनीज बिकॉज यू होप that their risk management systems are really good. But look at companies like ABG Shipyard and so many others who screwed up big time in the choices they made.